بھٹو صاحب فرماتے ہیں کہ ہم صرف ان خواتین کی عزت کرتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہوتی ہیں، جو ہمارے گھر سے باہر خواتین ہوتی ہیں ان کو ہم بطور خواتین کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ یہی کچھ واقعہ پیش آیا لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر، جہاں پر کچھ درندوں نے ایک نہتی خاتون سے اس کے بچوں کے سامنے جنسی زیادتی کی اور ساتھ میں اس کے پاس جو قیمتی اشیاء تھی وہ بھی لوٹ کے چلے گئے۔ اس کے بعد پورے ملک میں ایک جو بات ہے وہ شدید ڈسکس ہو رہی ہے، اس کے اوپر بحث کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں موجود جو سزائیں ہیں کیا ان کا ڈر لوگوں کے دلوں میں ختم ہو گیا ہے، یا ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یا ایسے درندوں کو عبرت ناک سزا دینے کے لیے نئی سزائیں تجویز کی جائیں۔ اس حوالے سے دو سزائیں بہت ہی زیر بحث آ رہی ہیں لوگوں کے زباں پہ، جس میں ایک کسی کو نامرد بنا دینا، دوسرا سرعام پھانسی کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ آخر اہلیان ملتان، اہلیان جنوبی پنجاب ان سزاؤں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، شرعی پہلو کیا ہیں، قانونی لحاظ سے ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، تمام لوگوں سے بات کریں گے۔ اور سب سے اہم بات کہ ایسی خواتین جو کہ وکٹمائز ہوتی ہیں ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جائے، ہم سائیکالوجسٹ سے بھی بات کریں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کے ساتھ ایسا سانحہ ہو جاتا ہے تو ان بچوں کی ریکوری کیسے ہو سکتی ہے، ان کو سپورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، ان تمام پہلوؤں سے آج بات کریں گے۔ لیکن آپ رہیے ہمارے ساتھ، آپ کو دکھاتے ہیں کہ اہلیان ملتان کیا کہتے ہیں۔ اس وقت ہم گلگشت میں موجود ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹس کی اور عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہیں سے گزرتی ہے۔ تو عام عوام موٹر وے سانحے کے بعد جتنے بھی قوانین کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہے، اس سے جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا بھائی یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ جو ایسے درندے ہیں جو ایسی زیادتی کرتے ہیں ان کو نامرد بنا دینا چاہیے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسے سخت قوانین ہونے چاہیے؟ بالکل ایسا ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک لوگوں کو کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کا کیا سزا ہے۔ لوگ مطلب بلا جھجک جو بھی کرتے ہیں، سزا ہوگی تو یہ کنٹرول ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب سزا ہو جائے گی تو یہ کنٹرول ہو جائے گا؟ بالکل کنٹرول ہوگا۔ سر آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے کے اوپر، کیا مرد جو بھی اس معاملے میں جو لوگ ملوث ہوں ان کو نامرد بنانا ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت جو ہے نا بری حرکت کیا ہے، معاشرے میں انہوں نے بہت بدنامی کی، ان کی وجہ سے بہت بدنامی ہوئی ہے، لہٰذا ان کے برا سے برا حال ہونا چاہیے۔ اچھا بالکل زیادتی ہوئی ہے، بہت ذرا پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، اور جو بہت سارے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا بھائی جان ایک بات بتائیے گا کہ موٹر وے جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد بہت سارے قوانین کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو قوانین پیش کیے ہیں، جو مسودہ پیش کیا ٹھیک ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، جو معاملات گورنمنٹ کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے قوانین پاس ہونے سے یہ جرائم رک جائیں گے؟ بالکل رک جائیں گے، اگر سزا ملی جائے گی، جو مجرم ہیں انہیں سزا ملے گی موقع پر، تو ظاہر سی بات ہے یہ کافی چینجنگ آئیں گی۔ چینجز مطلب کیسے آئیں گی؟ ایسے تو جو قتل کی سزا ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن قتل تو پھر بھی ہو رہے ہیں۔ بس ابھی کیا کر سکتے ہیں، ہماری گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اچھا بھائی یہ بتائیے گا کہ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں ان کو نامرد بنانے کی بات ہو رہی ہے، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جو مسئلہ ہے عورتوں کے ساتھ بدفعلی کا، یہ جو اگلے دن سنیں موٹر وے کے اوپر جو پیش آیا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سزائے موت ہونی چاہیے جو سرعام پھانسی چوک کے اندر کھڑا کر کے ہونی چاہیے۔ یہ میرے ذہن کے مطابق صحیح ہے۔ سرعام پھانسی دینی چاہیے۔ بھائی جان آپ کیا کہتے ہیں، نامرد بنانا چاہیے، پھانسی دینا چاہیے، کوئی اور قانون ہونا چاہیے؟ نہیں، پھانسی دی جائے یا سخت سے سخت سزا دی جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اگر سزا دیتے ہیں تو دوسرے دیکھ کے اس سے ہٹ جاتے ہیں، عبرت پکڑیں گے۔ عبرت پکڑیں گے۔ تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کون سی سزا سب سے بہترین ہے؟ پھانسی، سزائے موت۔ سزائے موت ہو، نہ بندہ ہوگا نہ دوبارہ جرم کرے گا۔ بالکل۔ ایسا آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کو نامرد بنا دیا جائے، پھانسی دے دی جائے، یا کوئی اور سخت سزا ہونی چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ایک مرد کے لیے تو یہی سخت سے سخت سزا ہوتی ہے کہ اسے نامرد ہی بنا دیا جائے، کیونکہ یہ جو سانحہ ہوا ہے ٹھیک ہے، اس سے یہ ہونا نہیں چاہیے ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نامرد والا یہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان نے منظوری دے دی ہے، میرے خیال سے یہ بہتر ہے۔ اگر کسی ایک کو بھی نامرد بنا دیا گیا اور شرع عام اس کو مطلب کہ عبرت کا نشان بنایا گیا تو باقی بھی عبرت پکڑیں گے، اور میرے خیال میں اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اچھا اگر کسی کو اوپر الزام لگ گیا اور اس کو نامرد بنا دیا گیا تو اس کا کوئی پھر بعد میں ازالہ ہو سکے گا؟ اس کا تو پھر عدالہ نہیں ہے نا، پہلے تو پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پورے فل پروف ہونے چاہیے ٹھیک ہے۔ اب جیسے وہ پکڑے گئے، ان کا ڈی این اے سننے میں آ رہا ہے کہ میچ ہو گیا ہے ٹھیک ہے، پھر ان کو تو سزا سخت سے سخت ملنی چاہیے۔ سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے۔ بھائی جان آپ بتائیے گا موٹر وے واقعہ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ سزائے موت دینی چاہیے یا نامرد بنا دینا چاہیے؟ بھائی جان نامرد بنانا چاہیے، یہ کون سی مردانگی کی بات ہوئی؟ آپ لوگ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ ایسی حرکت کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے ویو خراب ہو رہا ہے یہ. تو میں تو کہتا ہوں انہیں 20 سڑک پہ نامرد بنا جائے تو بیسٹ ہو جائے گا. تو اگر اس کے باوجود بھی یہ کام نہ روکا تو پھر کیا کریں گے؟ بھائی جان پھر یہ جو بندہ نظر آئے اسے وہیں موت کر دو، سزائے موت دے دی جائے. تو سزائے موت پہلے دے دی جائے تو کیسا رہے گا؟ سب کے سامنے اگر بیچ جگہ پہ دی جائے گی نا تو ساروں کے لیے وہ سبق بن جائے گا. بھائی جان اس طرح دوبارہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ انجام ہے. اگر دوبارہ کریں گے ان کے ساتھ بھی پھر یہی کرنا چاہیے. 5-6 دفعہ ایسا ہو گیا، 5-6 بندے پکڑ کے آپ مرد ہو کے ایسی بات کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ بھائی جان زیادتی کس چیز کی؟ ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے. ہمیں تو شرم آتی ہے اپنے آپ کو مرد کہتے ہوئے بھی. اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا بھائی جان بتائیے گا، موٹر وے والا سانحہ ہوا ہے، اس کے بعد سے مختلف سزاؤں کی بات ہو رہی ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے ایک مسودہ منظور کرنے کی اجازت دی ہے کہ ایسے لوگ اگر کام کرتے ہیں، ایسا زیادتی کرتے ہیں، کسی کا ریپ کرتے ہیں تو ان کو نامرد بنا دیا جائے. تو کیا کہتے ہیں آپ، یہ ٹھیک ہے؟ جی یہ صحیح ہے. ایسے قانون جب تک پاکستان کے اندر لاگو نہیں ہوں گے تو یہ واقعات آئے دن ہوتے رہیں گے. ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ایسے قانون سخت سے سخت لانے چاہیے وزیر اعظم صاحب کو، اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نامرد بنانے والا قانون ہے یہ سب سے سخت ہے، کہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ اس پہ عمل ہو تو پھر آگے کوئی نیکسٹ سٹیپ لینا چاہیے، کوئی بہتر اس سے. سر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نامرد بنانے والا سزا ہے یہی سزا بہت ہے، یا پھانسی دے دی جائے، گولی مار دی جائے، کیا کیا جائے؟ نہیں فی الحال تو یہی صحیح ہے کہ نامرد بنا دیا جائے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ جو زیادتی کے جو ہو رہے ہیں کیس اگر یہ نہیں کنٹرول ہوتے تو پھر سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے. لیکن پھانسی بھی اس شرط پہ دی جائے کہ کبھی کوئی ناجائز نہ ہو، کہ کسی جس طریقے سے ہمارے پولیس والے اکثر کرتے ہیں کہ جو امیر ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، غریب کے لیے قانون ہوتا ہے. قانون ایک تو ہمارا سب کے لیے ہونا چاہیے برابر. مطلب قانون سب کے اوپر برابر امپلیمنٹیشن؟ جی بالکل سب کے اوپر برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے وہ عام ہے. بہت غم و غصہ نظر آ رہا ہے تمام لوگوں کے درمیان. تمام لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، جتنی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائی جائے تاکہ ایسی حرکت دوبارہ نہ ہو سکے، کوئی بھی عورت کو دوبارہ پھر سے ایسی زیادتی کا نشانہ نہ بنایا جا سکے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مختلف لوگوں سے بات کریں گے کہ آخر ان کی ماہرانہ رائے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کیا ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. موٹر وے کا واقعہ بہت ہی المناک ہے اور بہت ہی دلدوز بھی ہے. آخر جو درندہ ہے وہ اپنی درندگی کر کے چلا جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں خواتین کی جو ایسی وکٹم بنتی ہیں ان کے اوپر آخر کیا گزرتا ہے، کیسی جو سچویشن ہے وہ کیسی ہو جاتی ہے ان کے لیے. ان تمام چیزوں کے لیے ہم نے ہیومن سائیکی کو سمجھنے کے لیے سائیکالوجسٹ سے رابطہ کیا ہے. تو اس وقت میڈم سلان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آخر یہ نوبت آتی کیوں ہے کہ کوئی شخص ایسے درندگی پہ اتر آتا ہے؟ پہلے اس حوالے سے بتائیے گا مجھے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ یہ چیز سٹارٹ کیسے ہوتی ہے، کوئی انسان اس قدر اتنا زیادہ سائیکلوجیکل کس طرح سے اس نہج پہ جاتا ہے، اس حد پہ جاتا ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی حرکت کرنے کی طرف چلا جاتا ہے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ہمارے اپنے گھروں میں، سوری ٹو سے، ہمارے اپنے گھروں میں پیرنٹس، مائیں یا باپ جو ہیں وہ اس طریقے سے بچوں کی نگرانی نہیں کر رہے ہیں. پچھلے 10-20 سالوں سے بچوں کو آزادی دینے کے نام پہ اتنا زیادہ ان کو اوپن مائنڈڈ کر دیا جاتا ہے. ہم اوپن مائنڈڈ ہیں. سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے اپنے گھروں سے شروع ہوتی ہے کہ گھروں میں کس طرح سے تربیت دی جا رہی ہے، کس طرح سے چیزوں کو بتایا جا رہا ہے، میل ڈومیننسی کو کس طرح سے پورٹریٹ کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سکولز میں، مدارس میں کس طرح سے ٹیچرز کا بیہیویئر کیا ہے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، مدارس میں کیا کیا ہو رہا ہے. اب ہم دیکھیں کہ بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں کہ جو صرف سڑک پہ نہیں، یہ واقعہ جو ہے وہ رات کے وقت روڈ پہ ہوئے نہیں، دن کے وقت گھروں میں انفارچونیٹلی جو بچوں کو پڑھانے آتے ہیں، ٹیوٹرز ہیں، چاہے وہ قاری صاحب ہیں، وہ کس طرح سے جو ہیں وہ بچوں کو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. ہمیں جو سچویشن ہے اس کو بہتر کرنے کی، معاشرے کی جو ایک اوورال سائیکی ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے پاس ایسی وکٹمز آتی ہیں تو ان کے اوپر کیا گزر رہا ہوتا ہے، اس وقت ان کا کیا دل چاہ رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ خدا نہ خواستہ خودکشی کے رجحان کی طرف مائل ہوتی ہیں، یا وہ بدلہ لینا چاہتی ہیں؟ وہ چاہتی کیا ہیں؟ کچھ اس حوالے سے میں بتائیں. ریونج تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسی کیس میں بھی انہوں نے کہا کہ جیسے پولیس آئی اور کہا کہ مجھے مار دو. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ
जैसे पुलिस आई है, उसने सारे वाक़यात की पिक्चर्स ली हैं, उन्होंने उस खातून की पिक्चर भी ली है। अब यहाँ पे उस इदारे का, उस शख्स की ज़िम्मेदारी थी कि वो उस खातून की पिक्चर्स को अपने तक रखती। उन्होंने आगे फैलाते गए हैं। अब वो चीज़ बात जैसे फैलती गई है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इस तरह से वायरल हुई है। वायरल होने पे ये क्या है कि वो खातून जिसको दूसरे शख्स को भी नहीं पता था कि क्या हुआ, ठीक है, उसकी तस्वीर जिस हालत में वो थी जो है वो वायरल कर। ये बताइएगा थोड़ा सा कि आखिर क्या वजह है कि सज़ाएं हमारे पास मौजूद हैं, लोगों के दिलों से डर ख़त्म हो गया है। आए वो लूटने थे लेकिन लूट के कुछ और चले गए हैं वो, तो आखिर उनका जो रुझान है वो एक तरह से दूसरी तरफ क्यों डाइवर्ट हो गया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि रुझान एक तरफ से दूसरी तरफ क्यों डाइवर्ट हो गया है। सज़ाएं भी मौजूद हैं, लेकिन डर इसलिए ख़त्म हो गया है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो सज़ाओं को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हमारे पास फ्रॉम द डे फर्स्ट इस्लामिक कानून में, पाकिस्तानी कानून में ये चीज़ है कि जैसे ही आपका जो भी किसी भी किस्म के जो है मुजरिम वो आ जाता है तो आप उसको उसी वक्त सज़ा दें। अब हमारे पास मुजरिम भी आ गए हैं, हमें पता भी चल गया उन्होंने क्या क्या लिया, लेकिन क्या है कि अब पूरा जो है वो वाक़या दोबारा से चलेगा, पूरा जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। एंड पे ये है कि जो ताकतवर लोग हैं, चाहे वो सियासी तौर पे हैं, चाहे वो मौशी तौर पे हैं, चाहे वो सोसाइटी में हैं, या फिर जो हमारे हुकूमती इदारे, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, ठीक है ना, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करें, उनको तफ्तीश नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे उनको, मतलब कि इंसाफ नहीं मिल पाएगा, आप ये कहना चाह रही हैं थोड़ा सा। अच्छा दोस्तों मैम ये बताइए, कवानीन हैं, नए कवानीन की बात भी हो रही है जिसमें एक ये है कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे लोगों को ना मर्द बना दिया जाए, तो आप क्या समझती हैं कि ये नामर्दी एक बड़ी सज़ा है या उसको फांसी दे दी जाए, ये एक बड़ी सज़ा है? देखिए जिस तरह से हो रहा है कि कैस्ट्रेशन की बात की जा रही है, नामर्दगी की बात की जा रही है, तो उसके दो हैं कि एक तो मेडिसिन से दें, मेडिसिन का असर जो है वो हद साल तक रहता है। ये चीज़ जो है ना अभी तक कहीं पे बताई नहीं जा रही है। साल 2 साल तक रहेगा, जब वो उसकी मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाएगा वो खुला छूट जाएगा। जब वो दोबारा से उसकी मेडिसिन का असर ख़त्म होगा तो वो डबल दरिंदगी उसमें आएगी, वो डबल फ्रस्ट्रेशन आएगी। दूसरी बात जो ये है कि सर्जरी कर दें, वो इंसान, वो चीज़, वो सोच तो वहीं पे है, वो खुद नहीं करेगा, वो आगे प्रोवोक करेगा कि मेरे साथ इन्होंने ऐसे किया है कि मैं 1 के 4 मज़ीद बनाऊँ। तो इसकी सज़ा हमारे पास मौजूद है। ऐसे अभी तक के जितने भी केसेस हुए हैं उनको फांसी ही होनी चाहिए। एक मौत का खौफ वाहिद चीज़ है जो इंसान को किसी भी खौफ से, किसी भी डर में लेकर आता है। इस सिचुएशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इस सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? सोसाइटी को तो बदलना बहुत बाद की बात है, हम इंडिविजुअल को कैसे बदल सकते हैं? इसके हवाले से आपके रिकमेंडेशन क्या होंगे? मैं रिकमेंडेशन यही करूँगी कि हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो कानून बनाने वाले इदारे हैं, कानून सिर्फ बनाने के लिए नहीं होते हैं, कानून अप्लाई करने के लिए होते हैं। उनको फ़ौरी तौर पर उसी वक्त अप्लाई किया जाए कि जैसे वो पकड़ा गया है, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो पकड़े गए हैं, उन्होंने इकरार जुर्म भी कर लिया गया है, उसको बग़ैर किसी तफ्तीश के, बग़ैर लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन के, उसको उसी वक्त जो है, ठीक है ना, विदिन 2 और 3 डेज़ जो है उसको वहीं पे ख़त्म करें, उस चीज़ को, उस शख्स को ख़त्म करें। यहाँ पे सोच की बात नहीं है, यहाँ पे सोच उस वक्त ख़त्म करें। ये केस ऐसा है, ठीक है, ये जो सेक्शुअल असॉल्ट्स के केस होते हैं, ये केस ऐसे होते हैं कि अगर आपने इस सोच को उसी तरह से ख़त्म कर सकते हैं जब आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फौरी इंसाफ, फौरी इंसाफ और मतलब जो भी हैं मुजरिम हैं उनको उसी वक्त जो है वो फांसी ही दी जाए। सिर्फ मौत का खौफ है जिससे लोग डरेंगे और इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे, वरना जो छोटी छोटी सज़ाएं हैं, जेल होगी, कैस्ट्रेशन है, ये है, वो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शादी के हवाले से इनको परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये होती है कि जब वो बच्चियाँ जो हैं वो बड़ी हो रही होती हैं, उनको नहीं पता होता है चीज़ों का, और उनको नहीं पता होता है कि आगे उन्होंने किस तरह से लाइफ गुजारनी है। और अगर फैमिली की बच्ची है तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हाँ भाई इसके साथ फैमिली के ही किसी शख्स ने बुरा किया, तो अमूमन क्या होता है कि जिस फैमिली मेम्बर ने उसके साथ ऐसे किया होता है उसी घर में उसको दे देते हैं। अच्छा, हमारे एक और 50 से 60% ये चीज़ें चल रही हैं कि उसी घर में आप मतलब आपको लगता है कि आप उस बंदे को सज़ा दे रहे हैं, नहीं, आप अपने बच्चे को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, उसको कहें कि ठीक है ये हुआ है लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, उसको इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से एजुकेट करें, ठीक है, कि नेक्स्ट उसको अपने आप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखना है, किस तरह से कॉन्फिडेंस करना है। बच्चे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिसाइज़ करते हैं, इस तरह बड़े होते होते जो है वो हमेशा क्रिटिसिज्म का शिकार रहते हैं। तो जिस बच्चे के साथ हुआ है उसको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है ना, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, ये जो मोटरवे वाला वाक़या हुआ, इसके ऊपर वापस आते हैं कि उन बच्चों के सामने उनकी माँ के साथ रेप किया गया है,
तो उन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हम उनको कैसे निकाल सकेंगे इस तमाम सूरत हाल से? अगर खुदा ना खासा किसी और बच्चे के सामने ऐसा होता है तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? हमारे यहाँ पे आए दूसरे दिन यही केसेस चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पहला केस नहीं है। उसमें क्या है कि बच्चों को इतना ज़्यादा डर और खौफ होता है इस सारी सिचुएशन में। मुझे लगता है जितना ज़्यादा फोकस जो है वो उस खातून पे किया जा रहा है, उतना ज़्यादा फैमिली की तरफ या बाकी लोगों की तरफ बच्चों के ऊपर नहीं है। बच्चों को इस वक्त बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है उनके अपनी फैमिली की तरफ से, ठीक है ना। उन बच्चों को उस वाक़े को भुलाने की कोशिश करें जो हुआ है, और अवेयर करें कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है वो आपने दूसरे बच्चों को किस तरह से एजुकेट करना है, किस तरह से बताना है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कि उस एज के बच्चों को उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसके अलावा बात की बात करते हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो उनकी मदर की चाहिए। मदर को तो चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो उनके पेरेंट्स की, फैमिली मेम्बर जो हैं वो उनको अकेला नहीं छोड़ें, उनसे जो है वो उनकी डाइवर्ट करने की कोशिश करें बार बार। और सबसे ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसे बच्चों को और ऐसे लोगों को, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, बच्चे हैं बच्चियां हैं, औरतें हैं, हमारे यहाँ आके पूरी स्टोरी सुनी जाती है, जो सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात है। पूरी स्टोरी सुनी, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, मतलब जो हुआ जैसे हुआ एक बहुत बड़ा जुल्म है। ये बातें बहुत तकलीफ़देह होती हैं, उनके सामने स्टोरी के तौर पे इस सारे वाक़े को ना लिया जाए। बेहतर यही होगा कि अगर उन बच्चों को सपोर्ट किया जाए, उस फैमिली को सपोर्ट किया जाए, और ख़ास तौर पर उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट की जाए, ना कि उनको बार बार उसी चीज़ को याद दिलाया जाए और उनको किसी और किस्म के जो एहसास कमतरी है उसके अंदर मुब्तला किया जाए। ये तमाम बातें हैं आज की जो हमने की हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, और इतना बुरा चलता है ये असर कि वो ख़वातीन ख़ुदकुशी तक का सोचती हैं जब माशरा उनको कबूल नहीं करता। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि इस तमाम सूरत हाल के कानूनी पहलू क्या हैं और शरई पहलू क्या हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक लेते हैं ब्रेक। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं लोगों के साथ, उनके हमने जो व्यूज़ हैं, जो राय है उनकी हमने जानी है। आखिर कानूनी पहलू क्या है इस तमाम सूरत हाल के? आखिर ये जो बिल मंजूर होने जा रहा है, जिसका मसवदा तैयार कर लिया गया है, जिसके ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं, कोई इसके हक़ में बात कर रहा है, कोई इसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, कानूनी जो मुशगाफियाँ हैं वो क्या हैं, ये इम्प्लीमेंटेबल है भी या नहीं है? इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम मौजूद हैं, वकला बरादरी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ख़वातीन की जानिब रुख करते हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, मोटरवे पे एक हादसा हुआ है, बहुत ही अलमनाक, खौफनाक, इंसानियत लर्ज़ गई है तमाम सूरत हाल के ऊपर। उसके बाद ये बातें सामने आ रही है कि मर्द को नामर्द बना दिया जाएगा, उनको ख़ासतौर जो इस तरह के काम करते हैं, तो क्या कहेंगी, ये होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं उस अलमनाक वाक़े के ऊपर जितना भी इज़हार अफसोस किया जाए कम है, और बतौर वकील मैं यकीन कीजिए मैं बड़े अरसे से इस मौजू के ऊपर आवाज़ उठा रही हूँ। जब कभी भी हमारे इधर इलेक्शंस होते हैं या इसके ऊपर बच्चियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ रेप किया जाए, और स्पेशली इस तरह के डकैती के दौरान रेप केसेस हैं, मैं हमेशा इसके ऊपर बात करती है। इनको कानून तो मौजूद है, लेकिन उसके अंदर बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं? हमारा जुडिशल सिस्टम जो है उसके अंदर इसकी दो रीजनिंग है। नंबर एक बात, जब किसी बच्ची या औरत के साथ या बच्चे के साथ ये रेप केस होता है तो उसके अंदर ये समझ लिया जाता है कि ये औरत और मर्द का मसला है। उसके अंदर वो बेसिकली मैंने माशरे को देखा कि वो सपोर्टिव हो जाता है जो जुर्म करने वाला होता है। वो कहते हैं कि जुर्म से नफरत करें, मुजरिम से ना करें। ये बिल्कुल भी लॉजिक ठीक नहीं है। आपको जुर्म के से भी नफरत करनी चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए, और जो मुजरिम होता है उससे भी करनी चाहिए। आप समझती है कि ये जो सज़ा, आप समझती है ये जो सज़ा है ये ठीक रहेगी? इससे जो मुतलका खातून होगी, ये जो विक्टिम होगा, उसको इंसाफ मिल जाएगा सिर्फ इस करने से? वो तो जिंदा जीता जागता उसके सामने फिरेगा, आगे नहीं लगेगी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये देखें, एक हमने फांसी की सज़ा से भी देख लिया कि इससे बल्कि केस बढ़ गए हैं। ज़ैनब केस के बाद, ज़ैनब अलर्ट के जो कानून आया उसके बाद भी ये रुके नहीं है, शिद्दत आ गई है। तो बिल्कुल मैं तो ये समझती हूँ मेरी दानिस्त में, जब आप उस काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे तो वो फिरता रहे। ये बताएं, ये जो ज़्यादती है ये एक एक्ट का नाम है या सिचुएशन का नाम है? क्या इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ? देखिए,
मैं ये समझती हूँ कि देखिए एक चीज़ हमने की नहीं है, मतलब एक फांसी का कानून है या उम्र कैद का है, वो हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो ये करके देख लेने में कोई हर्ज नहीं है कि इससे अगर कोई जराइम की शरह में कोई फ़र्क आता है तो इसमें ये देखें ये कोई आसमानी सहीफ़ा तो नहीं है ना कि इसके ऊपर हम रद्दोबदल बीइंग औरत आप इसके ऊपर ये डिबेट दे रही हैं, बीइंग लायर आप इसके ऊपर दे रही हैं? जी मैं बिल्कुल दोनों हैसियतों से ये मैं आपको अपनी राय का इजहार कर रही हूँ कि बिल्कुल ये होना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि उस पर जो फांसियों से तो काम ये रुक नहीं। ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये पूरा उतरता है ये काम? ये देखें अगर हम ह्यूमन राइट्स को देखें ना तो राइट्स तो फिर वो जो जिनको आप रेप करते हैं फिर उसको जलाते हैं मारते हैं तो राइट्स तो उसके भी थे जो जान से गया। तो अब हम जुर्म को इतना क्यों प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ह्यूमन राइट्स का सवाल बना लेते हैं। अब उस राइट्स सिर्फ जुर्म करने वाले के होते हैं, जो ज़िंदगी से गया उसके कोई राइट्स नहीं थे। तो ज़िंदगी से क्या उसके कोई राइट्स नहीं थे? मेल वकला भी हमारे साथ मौजूद है। बड़ी सख्त बातें मैडम ने की हैं कि नामर्द बनाना ठीक है, जो मामलात हो गए हैं, जो जुर्म है उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में मुजरम को भी मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड मैं ये कह रहा हूँ ये जो जिस तरह ये प्रपोज़ल भेज रहे हैं कि नामर्द बनाने का, ये नेचुरल जस्टिस उसके ख़िलाफ़ है, ह्यूमन बीइंग की नेचर के ख़िलाफ़ है। हमारे इस्लाम में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारे इस्लाम में ऑलरेडी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, चोरी करें उसका हाथ काट दें, वो ये कंसेप्ट है, ये वाला नहीं है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग है, सपोज़ एक बंदा जुर्म करता है, अब क्या करते हैं उस बंदे को सज़ा डेथ दे देते हैं। अब उसके ये ऑर्गन का नहीं है कि उसके ऑर्गन काटे जाएँ, किसास है नो डाउट, अगर किसास पे वो पूरा उतरे, वो भी मेजरमेंट दिए गए हैं इस्लाम में कि किसास की क्या है। तो मेरे ख़्याल में इसकी पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना होनी चाहिए, ये नहीं कि उसको ना। वो सारी बात हो गई, आपकी सारी बातें मान ली, मैडम से भी हमारी काफ़ी बात हुई है, तो आपने इसको टोटल ही इसके आप अपोजिट चले गए हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो फिर इसको हम रोक कैसे सकते हैं? सज़ाएं तो पहले भी मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन पहले भी नहीं हो रही, काम जो है बढ़ता चला जा रहा है, तो रोका कैसे जाएगा इसको? सर इसकी पनिशमेंट आप स्वेयर कर सकते हैं, इसको लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं इसको रोक सकती हैं। इसके दूसरे भी कई मेजरमेंट्स हैं, वो अडॉप्ट करके हम ले सकते हैं। इस तरह पीक पे जाके ये मेरा नाकिस राय ये है कि ये जो पनिशमेंट है ये ह्यूमन बीइंग और मर्द के खिलाफ, अल्लाह ताला ने अगर किसी को मर्द बनाया है तो आपने अगर उसने कोई जुर्म किया तो आप उसको डेथ दे दें, उसकी डेथ पनिशमेंट रख दें, ऑर्गन कोई उसका वो करना। वो कहते हैं ना कि अगर एक दफ़ा सज़ा दे दी तो बंदा ख़त्म हो गया ना, उसको सारी ज़िंदगी याद रहे कि उसने कभी हरकत की है, तो उसके लिए ये सज़ा ठीक नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से ये सज़ा सही नहीं है। वो उसको इम्प्रीजमेंट करें, वो अंदर जाए, या उसको डेथ दें, उसको डेथ दें या कुछ और करें। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? काफ़ी मैं इसमें ये कहूँगा कि प्रिवेंटिव मेजर लें, इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करें। हमारा ऑलरेडी एविडेंस लैब मौजूद है, CRPC मौजूद है, एजेंसीज हैं, झूठे मुकदमात भी हैं। यहाँ तो मज़हब के नाम पे लोगों को काफिर करार दिया जाता है। तो इस तरह के जो है ये भी हीनियस ऑफेंस है, इसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। रेफॉर्मेटिव मेजर अपनाएं, प्रिवेंटिव लें, और उसके अलावा अवेयरनेस दें कि लोगों को पता हो कि हमारे राइट्स क्या हैं और हम किस फोरम पे इसके अगेंस्ट रेमेडी जो है हम अवेल कर सकते हैं। जी राइट्स इसके हवाले से अवेयरनेस देना होगी। अच्छा मैडम, इस बात को हम कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं यहाँ पर। अगर ये लॉ बन जाता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? उसको हम कैसे कहेंगे कि ये बंदा राइट पे है, इसको सज़ा ठीक मिली है? जस्टिस सिस्टम की पहले भी आपने बात की है, अगर उसमें किसी बेकसूर को सज़ा मिल जाती है तो उसका कौन अजाला करें? देखें इसमें एक बात तो ये है कि अभी ये लॉ जो है अंडर डिस्कशन है, इसके अंदर ज़ाहिर है वो बैरामीटर्स मुकर्रर किए जाएंगे, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं कि अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, उसके अंदर DNA सबसे बड़ी आपकी एक जो तेज़ तरीन अमल है, ये किसी को इसके अंदर बिल्कुल भी किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलेगी। उसके अंदर अगर DNA मैच करता है तो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी। ऐसे तो नहीं है कि किसी राह चलते को आप ये दे देंगे सज़ा। और बाकी मेरे भाई ने ये कहा कि भी इस्लामी के ख़िलाफ़ है, तो ये क्या इस्लाम के अंदर जायज़ है कि आप एक औरत जो अपने बच्चों के साथ सफ़र कर रही है, आपने अगर लूट मार कर ली तो आपने उसको रेप ज़रूर करना है? ये इस्लाम के अंदर एन जायज़ है। और दूसरी बात है, जब एक औरत, कोई मर्द या औरत चोरी करती है, उसका हाथ काट दिया जाता है, तो ये भी तो एक ऑर्गन है ना, कोई जो गलत काम के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उसको भी काट देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। जी DNA की बात कर रहे थे। की बात मैं कर रहा था, मैडम कर रही थी। इसमें जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की जजमेंट आई हुई है कि हमारे पास प्रॉपर किट्स नहीं है कि DNA पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमारी जो लिबर्टीज़ हैं वो इस तरह डेवलप नहीं हुई जो बता सकें कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। प्रॉपर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है।
तो जो रिपोर्ट्स हैं आपको पता है हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स के साथ बहुत कुछ हो जाता है सर। नामर्द बनाने की बात की जा रही है मोटरवे के ऊपर जो वाक़या हुआ उसके बाद, बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए लायर, बीइंग ए मर्द, क्या कहते हैं? देखें जी, इसके लिए जो एक प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर हमारे मुल्क में अडॉप्ट किया जाता है, मतलब जब इस किस्म के रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं तो एक मेकनिज़म है, मतलब असल एविडेंस आपकी मेडिकल एविडेंस जो इन शेप ऑफ, मतलब आप फॉरेंसिक साइंस जो लैब है हमारी लाहौर में, एक बहुत अच्छी लैब है, मतलब एक वेल इक्विप्ड लैब, तो उस हवाले से देखें जो रिपोर्ट आएगी और उस चीज़ को वर्ल्ड वाइड चीज़ें जो रिकग्नाइज़ की जाती हैं उसके मुताबिक ही फिर कोर्ट उसे प्रज्यूम करेगी। वो करेगी। हाँ जी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? रेप केसेस वगैरह ये नहीं, रेप केसेस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो मर्द को नामर्द बनाने की बात की जा रही है, मसवदा तैयार किया जा रहा है, ये ठीक है कानून या नहीं? नहीं, ये गलत बात है। मतलब देखें, दोनों चीज़ें इक्वालिटी बेस्ड हैं, जैसे इस्लाम भी है और आपका लॉ भी है, मर्द की एक अपनी है जो उसके स्टैंडर्ड्स, इसी तरह खातून के भी, दोनों के इक्वल राइट्स हैं। दोनों के इक्वल राइट्स हैं, दोनों के उसी हवाले से उनको सज़ा देनी चाहिए। अच्छा मैडम ये बताइएगा, चलें ये तो हम उस कानून की बात कर रहे थे जो कि अभी अंडर डिस्कशन है, अभी बन रहा है, तो ऐसे कौन से कवानीन हैं जिसके तहत अगर हम सज़ा देना चाहें तो दे दें इस केस के अंदर, वो कौन से, उस वाला ज़रा बता दें। अब देखिए ना, थोड़ा सा इस्लाम को देखें तो हम यहाँ इस्लामी कानून अगर हम पढ़ें तो उसमें बाकायदा ये फुल वो है कि अगर इस तरह का मसला करते हैं, हो जाता है, तो ये संसार पे आ जाता है कि हम उसको संसार कर टिल डेथ तक, ये भी रोड सबके सामने पब्लिकली, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो, वो भी देखें, वो अपना हशर ख़ुद भी देखे। ज़ाहिर है वो महसूस तो वो करेगा ना, उससे होगा, लोग महसूस करेंगे। तो ये संसार वाला जो है ना कानून, ये ठीक मेरे नज़र से ठीक है। और जो बातें इस पे हो रही हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अवेयरनेस और डिस्कशन हो, उसके बाद ये अगर पास बिल हो जाए तो कोई इसमें इतराज़ भी नहीं है। इसमें कोई एतराज़ नहीं है, ये बात सही है। अगर लोगों की अक्सरियत राय इसको मंसूर कर लेती है तो इस चीज़ को हो जाना चाहिए ताकि बुराई को रोका जा सके, और उसके लिए हमें हर हद तक जाना चाहिए। वकला से हमने बात की है, हर किस्म की ओपिनियन हमारे सामने आई है, कुछ ने कंडेम किया है, कुछ ने इसको सपोर्ट किया है। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसमें शरई मामलात क्या हैं और शरीयत क्या कहती है इस तमाम सूरत हाल के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। ये प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे लोगों की हमने बातें जानी हैं कि आखिर ये जो हुकूमत की जानिब से एक कानून का मसवदा तैयार किया गया है कि जो ज़्यादती करने वाला शख्स है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस हवाले से मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के पास हम मौजूद हैं कि आखिर जानते हैं इनसे कि जो शरई सज़ाएँ हैं इस सारे मामले के अंदर वो क्या होती हैं, और जो मौजूदा कानून एक तैयार किया जा रहा है, उसकी मंजूरी दे दी है इमरान खान साहब ने, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे हो सकती है शरई कवानीन के होते हुए। सर आपने भी इस हवाले से काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, चीज़ें सामने आई भी हैं, तो क्या कहेंगे? पहले तो हमें आप बताएं कि जो शरई सज़ाएँ हैं वो क्या हैं कि जो शख्स ज़ना करता है, ज़्यादती करता है, उसके हवाले से। देखिए जी, सूरत हाल ये है कि मेरा दीन इस्लाम मुकम्मल कामिल व अकमल दीन है। हुदूद के हवाले से भी, ताज़ीरात के हवाले से भी, सज़ाओं के हवाले से भी। हम वो खुश नसीब हैं मोहतरम इमरान खान साहब और हम, जिन्होंने रियासत मदीना की बात की और उमर ला की बात की। मेरे सामने 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में था, जब ये मेरी बात सामने आई तो मैंने बड़ी जुर्रत के साथ ये बात कही कि ये ऐसी बात है जो खिलाफ़ शरीयत भी है, खिलाफ़ हकीकत भी है, खिलाफ़ हिकमत भी है। मेरा दीन वो है जो हिकमत का दीन है। मतलब आप कहते हैं ये जो कानून तैयार हो रहा है ये शरई लिहाज से ठीक नहीं है? कतई तौर के ऊपर ये कानून तैयार नहीं होगा। मैंने बड़ी जुर्रत के साथ ये बात कह दी है। न इस्लामी नज़रियाती कौंसल को मैं इजाज़त देता हूँ, न मोहतरम इमरान खान साहब की हुकूमत को इजाज़त देता हूँ कि इस तरह की कोई कानून साजिश की जाए जो 1500 साल के तसलसल में हमें नज़र नहीं आती। मेरा दीन रहमत कतई तौर पर इजाज़त नहीं देता कि इन लोगों को ये सज़ा दी जाए। हाँ, मेरे कुरान ने और मेरे नबी रहमत के दीन ने और मेरे नबी रहमत के फ़रामीन ने, खिलाफत राशिदा ने जो हमें निज़ाम दिया है वो ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स बदनसीब रज़ामंदी के साथ अगर शादीशुदा है तो उसकी सज़ा भी मौजूद है। मतलब अभी ज़्यादती नहीं है, अगर रज़ामंदी की सज़ा बता रहे हैं आप। रज़ामंदी के साथ अगर कोई आदमी इस तरह की गैर अखलाकी इक़दाम उठाता है तो उसकी सज़ा भी कुरान और सुन्नत में मौजूद है, जिसको मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ कि बाहमी रज़ामंदी के साथ अगर मोहतरम और मोहतरमा रहें रज़ामंदी के साथ, अगर वो गैर शादीशुदा है तो उसकी सज़ा भी कुरान और सुन्नत में मौजूद है। जो सारा मामला हुआ मोटरवे वाला, तो ये तो बिल-रज़ा नहीं है, ये बिल-जबर है, तो इसमें शवाहिद भी पूरे नहीं मिल रहे अभी तक पुलिस को इस हवाले से। तो क्या कहेंगे कि ये मामला ठीक है या इनको सज़ा वही दे दी जाए जो वज़ीर-ए-आज़म साहब मंजूर कर रहे हैं?
वज़ीर आज़म साहब इंशाल्लाह ये मंजूर नहीं कर रहा है, मैं बड़ी जुर्रत के साथ कहता हूँ। वज़ीर आज़म साहब से मेरा रब्ता है, उनके जो ताल्लुक़ वाले हैं उनसे भी मेरा रब्ता है। ये कोई कानून नहीं बन रहा, बाज़ लोगों की तरफ से ये बात आई है। कानून वही है जो कुरान और सुन्नत में मौजूद है। सूरत हाल ये है कि मोहतरमा के साथ जो कुछ हुआ, मेरी तालिब इल्माना तहकीक के मुताबिक इस पर ज़िना की सज़ा नहीं होगी, इसके ऊपर वो सज़ा होगी जो फसाद फिल अर्द की अल्लाह के कुरान ने बयान की। कितनी बड़ी बात है कि जनाब मोटर वे के ऊपर एक मोहतरमा जा रही है, गैर मुल्क से बेचारी तशरीफ़ लाई है कि उस मुल्क में मैं जा रही हूँ जहाँ रियासत मदीना की बात हो रही है, उमल्ला की बात हो रही है, तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है। मोटर वे जनाब एक महफूज हमारा ज़रिया सफ़र है। जो कुछ मोहतरमा के साथ हुआ, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, इस वक्त मोहतरम इमरान ख़ान साहब की हुकूमत में और रियासत पाक में, जिसे हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, इस तरह का जो अमल है उसके लिए सज़ा ज़िना की नहीं होगी, बदकारी की नहीं होगी, वो अल्लाह और रसूलुल्लाह से जंग की होगी। क्या होगी उसकी तरफ तफसील बयान करते हैं। हाँ, उसके लिए ये है कि युक़त्तलू, कि जो कातिल हैं उन्हें सरेआम कत्ल किया जाए, युसल्लबू, सूली लटकाया जाए, और हुकूमत अगर चाहे तो उनके जनाब हाथ और पाँव के काटने का हुक्म भी मौजूद है, उनको मुल्क बदर करने का हुक्म भी कुरान ने इसको बताया है। ज़ना की उनको नहीं मिलेगी सज़ा। देखिए ना, ज़िना के हवाले से चूँकि मेरा इस्लाम जो है ना बड़ा पाकीज़ा दीन है, उसके लिए इकरार कि जो मुजरिम है वो इकरार करे, यकीनन इकरार नहीं करेंगे वो, या वो गवाही हो, शहादत हो जो 4 लोगों पर मुश्तमिल हो, और वो जो चीज़ें वो भी कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है, हर आदमी जानता है। इनके लिए जो सज़ा है, यही बात मैंने जब सऊदी अरब के अंदर में तालीम पा रहा था और फिर बाद में राब्ता आलम इस्लामी के बतौर मेंबर के रहा, मैंने कहा कि ये लोग जो इस वक्त हीरोइन ला रहे हैं, इनको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? इनको सज़ा मिलनी चाहिए, उस सज़ा का नाम है उम्मत के अंदर, इंसानियत के अंदर, रियासत के अंदर रहते हुए इस तरह का इकदाम उठाना। देखे ना, पाकिस्तान की रियासत बदनाम हुई है। सर ये देखे ना, ज़्यादती हुई है ख़ातून के साथ, उसके बच्चों के सामने उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, उसे लूट भी लिया गया, ज़्यादती भी हुई, बड़ा एक बुरा मामला हुआ है। तो आप उसमें कह रहे हैं कि ज़्यादती की शरह उसके ऊपर नहीं लग सकती। क्या जो DNA मैच हो रहा है या जो बाकी जो शवाहिद हैं, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, क्या हम उनको शरई कवानीन के हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? मोहतरम, मैं तो आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ ना, उन बदनसीबों पे सिर्फ ज़िना और बदकिरदारी का जनाब वो नहीं, उन्होंने रेप किया, उन्होंने उस मोहतरमा की तौहीन की, उन्होंने रियासत मदीना जो पाकिस्तान है उसको बदनाम किया, हमारी हुकूमत को बदनाम करने की एक साजिश की। इसलिए ये मुहारबा है। इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ जो आदमी इक़दाम उठाता है, अल्लाह रसूलुल्लाह का, और कुरान ये कहता है कि इन्होंने जंग की अल्लाह के साथ और रसूलुल्लाह के साथ। इन्होंने पाकिस्तान की एक इस्लामी रियासत का मजाक उड़ाया है, यहाँ बदअमनी पैदा की है, बहीमियत दिखाई है, दरिंदगी दिखाई है। इसलिए इनके लिए एक सज़ा नहीं, इनके लिए वो एक जामे सज़ा है जिसे कुरान कहता है कि युहारिबून अल्लाह व रसूला। इन वो बदनसीब हैं जिन्होंने अल्लाह और रसूलुल्लाह से जंग की है। हमारी रियासत मदीना के नारे के बाद और उमर ला के बाद जो आदमी इस मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा करता है, फसाद करता है, ये फसाद फिल अर्द है। फसाद मतलब उनको अब जो रेप किया उसकी सज़ा भी मिलेगी, जो उन्होंने फसाद फिल अर्ज पैदा किया उसकी सज़ा भी मिलेगी, जो पाकिस्तान को बदनाम किया उसकी सज़ा भी मिलेगी। ये तमाम सज़ाएँ आप कह रहे हैं उनको अलग अलग मिलेंगी? कुरान मजीद में सबसे सख्त तरीन जो सज़ा है ना, वो इन्हीं बदनसीबों की है। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो DNA है, जो बाकी जो शवाहिद हैं, जो तफ्तीश होगी उस पर तो मेरे बेटे हुई तो उस वक्त भी मैंने यही बात की। इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने एक बात की, मैंने उसको रद्द किया। उन्होंने कहा कि ये कराइन में है। मैंने कहा ये इस्तिलाह तो आज तक ना मैंने हदीस में पढ़ी है ना फ़िक़ह में पढ़ी है। शहादत गवाही गवाही होती है, लेकिन उसकी शराइत बड़े सख्त हैं। मैं तो उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मसला ये है कि बदकिरदारी से ज़्यादा जो उन लोगों का जुर्म है वो ये है कि उन्होंने एक इस्लामी रियासत पाकिस्तान, जहाँ उमर ला की बात हो रही है, मदीने जैसी रियासत की बात हो रही है, उसको बदनाम करने की साजिश की है। सर उन्होंने बदअमनी फैलाई है। इसलिए उनको जो सज़ा दी जाए वो सबसे सख्त तरीन सज़ा है कि अन युक़त्तलू, कत्ल किया जाए, और युसल्लबू, या उन्हें सूली पे लटकाया जाए। सर सज़ा बहुत सख्त हो गई, हमने इस हवाले से बात भी कर ली, अहाता भी कर लिया कि आखिर उनको कौन कौन सी सज़ा दी जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो ये सज़ाएं हैं इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। तो इस सूरत में भी अमल दरामद होता हुआ बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा। इस पर क्या कहेंगे आप कि कैसे अमल दरामद होना चाहिए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? यही बात मैं मौजूद हुकूमत से भी कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ एक दिन के लिए मुल्तान आया हूँ, कल से फिर मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ।
दो वजूहात इस वक्त बड़ी अजीब से बन गए हैं। आप भी देख रहे हैं जो कुछ कराची में जुलूसों की सूरत में हो रहा है, हर फ़िरके वाला जनाब अपने लाखों लोगों को के रोड पे आ रहा है, और जिस तरीके पे कत्ल आम अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं नहीं कहता, जो शुरू होने वाला है और जिसकी साजिश हो रही है उसको भी हम देख रहे हैं। और इस तरह की कानून साजी को, ये कानून साजी इस तरह नहीं होगी जिस तरह के मजाक उड़ाया गया है, जी उसको नामर्द कर दो, ये कर दो, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इनको सज़ा वही दी जाएगी जो कुरान ने बयान की। फसाद फिल अर्द उसका नाम है, अल्लाह और रसूलुल्लाह से जंग। इसी कानून को मुअस्सर बनाते हुए आज के बाद पाकिस्तान में अगर कोई शख्स जबर के साथ, जिसे रैप कहते हैं, और पाकिस्तान के अमन को तबाह करता है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है, उन सब बदनसीबों के लिए यही कुरान की जो सज़ा है, इसी पे इंशाअल्लाह हम काम करेंगे, इसी को मुअस्सर बनाएंगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब इस तरह के कत्ल एक दो हुए कातिल, और इस तरह के जालिम दरिंदे, इस तरह के बहीमाना किरदार वाले, या इन्हें सरेआम फांसी पे लटकाया गया, तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान मदीने जैसी रियासत बनने में कामयाब हो। सर सज़ाएँ तो अब भी मौजूद हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा उनके ऊपर, तो जब अमल दरामद नहीं होता तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? जी अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसी कानून को काबिल अमल बनाने के बाद और फौरी तौर पर कि 3 महीने के अंदर जो है इसके ऊपर कार्रवाई हो, इसके लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम मेहनत कर रहे हैं, और यही कानून साजी होगी, इसी पे काम होगा। ये जो नामर्द वाली बात है, ये मैं ये समझता हूँ कि दुश्मनों की तरफ से फैलाई गई है। ऐसा कोई कानून नहीं बन रहा, और न इस तरह का कानून बनना चाहिए, क्योंकि मेरा दीन हिकमत का दीन है, मेरा दीन एक कामिल व अकमल दीन है। ऐसा कानून बनाना जिसकी 1500 साल के तसलसल में किसी इस्लामी रियासत में ऐसा कानून न हो, हम उस तरफ नहीं जा रहे। जी बिल्कुल, उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाया जाएगा, कानून नहीं बनेगा, दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ हमने एक तवील सैर हासिल गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कुरान मजीद की रोशनी में, हदीस नबवी की रोशनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें वाज़े की हैं, और नए कवानीन बनाने की जानिब भी जा रहे हैं, जिसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा, ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। अपने मेज़बान तैयब साहब को यहाँ पर इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह जल्द हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ।